So, Okay, it's 11 and we are still waiting for two more participants. So what do you guys say? Should we wait for them or let's start our meeting? it's up to you. If you think that they are going to join, then we can wait. Yes, there are two more panelists. Basically, I'm just waiting for them. So let me send a message to them as well. So let's wait for 2 more minutes and Okay, Zitasha, can I join again? I think there is a problem in my video. I cannot be seen here. I'm just rejoining it back. okay, you can. Okay, Dr. FIFA, you are with us? Yes, Zitasha, I'm with you right Okay. now. Let's start because we are still waiting for two more panelists, and as soon they join, so we'll have the discussion with them as well. Everybody, thank you so much. Welcome to you all for this webinar session. And this webinar session is basically a kind of a series that we have started from last month, and we are actually this is one of our part of our project. We are Action for Impact is implementing parenting matter for the tolerant society and for the interfaith harmony. So in that project, we are doing different activities. Like we are working highly with Christian community, Hindu community, and Muslim community in Rawalpindi and Islamabad. And basically, we are working with the parents that how we can ensure the tolerant society by taking different measures at the different level. So we have also started this webinar series because we really wanted that there should be discussion with some kind of the expert. We must have some many other ideas and many other opinions, and we also hear from the other point of view that what kind of the actions and what kind of the steps we can take to ensure the interfaith harmony and religious tolerance at different levels, especially in the society like Pakistan, where the religious extremism is very high, where we have the lots of incident related to the faith-based communities. We see there is a number of the incident happen in past many years, and recently we have also see that there are the number of the incident happening at the various level. So it is all about that the society is intolerant. It is all about that we don't have the system in place in that way. We do have strong policies and the legislation at the government level, but we also see the
gap in the time of the implementation as well. But I think there are also lots of needs required at the different level, that what kind of the step we can take. So this is the second webinar, and this webinar is basically is all about that we need to see the role of society, institution, and parents as well, because we think that the parents are the most important part in the society, especially for the young generation, because the Pakistan is a country who's the quite highest is the youngest country according to the many reports, according to the United Nations Development Report as well, that 64% population is based on the young people. So I think it's a high time to educate and aware the young people, and as well as we need to talk about the role of the society and also the institution, that what kind of the measures we can take for the a tolerant society in Pakistan. So let me introduce my panel first. I'm very thankful to all of my panelists who gave us time, and who, especially on the weekend, and especially to the Christian community, because they are having a Holy Week, and especially in that Holy Week, they are taking out the time for this particular webinar session. So I'm very thankful to them. We have three panelists with us right now, and we are still waiting for Tariq sir, but the three panelists I really wanted to introduce first. So we have Dr. Afifa Amin. She's the National Program Manager from Infection Prevention and Control from IHN, Indus Hospital and Health Network. She's a very active lady. I see that she's also very much active on the social media. She also take lots of position on various human rights issue at the different levels. So apart from her profession, she's also doing lots of activism on the different platforms. So thank you so much, Dr. Afifa, for joining us today. We have Mr. Amir Wasim, who needs no introduction because he's, mashallah, doing a very good work. He's connected with the Daily Dawn newspaper. He's a very kind of the senior journalist in Pakistan, and taking lots of position, especially on the minority rights, faith-based community rights, and working very high on the various issue that we are facing, whether it's the economical, political, social, societal issue, that he's taking position through his media channel. And apart from the media channel, he is also doing lots of activism for at the different level for making the country more prosperous. At different levels. So thank you so much, Amir Saab, for joining us on the Saturday, especially in the Holy Week. Then we have Mr. Arif James with us. Arif James is the regular member of our project Parenting Matter. Arif James is also doing lots of work. He also got his own organization, Aaj Foundation. Then he's also doing a lot of work for the churches as well. So we highly welcome Mr. Arif James, and doing lots of social activism. His wife Angela is also with us. She was with us in the last webinar session. She was associated with the Human Rights Ministry previously. So both the husband and wife are doing lots of work, and we highly appreciate their work at the different levels. So thank you so much, Arif sir, for joining us. So let me tell everybody, today a discussion will be mostly the bilingual. We use both Urdu and English because most of the participants are comfortable in Urdu, and some participants will be the comfortable in English. So we have no issue. So I will be asking few questions to each of the panelists. So it's up to them. So they really give a answer in English or Urdu, so it's really up to them. So we have some other participants with us like Lurto. If you don't understand, so I will translate the kind of the discussion whosoever our participant is doing in Urdu. So we will translate it for you, so you don't be disconnected from the discussion at all. So this is going to be the methodology. So if everybody is allowed, so can I start with Dr. Afifa? I hope everybody is okay with that. So okay, thank you so much. So our first panelist member is Dr. Afifa. Dr. Afifa, thank you so much for joining us. And please unmute your mic. Thank you so much. So, Dr. Afifa, I'll be asking few questions to you, and then we really wanted to hear from you that about those perspectives. So, Dr. Afifa, please do let me know, okay, how do you see the overall situation of religious tolerance and interfaith harmony in the country, and what do you see? What kind of the gaps exist at the policy and the program level to ensure the peace, harmony in this country? Because we know from you, we really wanted to know about the role of the society and institution. So please, can you give some overview of the overall situation, and what do you see the role of institution in ensuring the interfaith harmony in the country?
Thank you, Zertasha, for giving me up the mic, and my apologies are with you because my video is not working right now. But as the question arises that what is the situation of religious intolerance? So I may answer that. That the situation of religious tolerance and interfaith harmony, I think in Pakistan, it's just like a mixed one. Nah? Like in one hand, we can see the positive development, progress, like such as a restore. We just see the restore of religious site, Kartarpur Corridor initiative. It was very excellent progression of Pakistani people that they have opened that corridor for Sikh people, Sikh community, or and there we can see that there's an increasing interfaith dialogue. So these reflect a growing, you can say, a recognition of Pakistan religious diversity. But on the other hand, you can see that we can see the significant challenges as well. Nah? The challenges always remains there, like the misuse of blasphemy law, which I always say that the rising of hate speech is there, the religious motivated violence is there, and it really continues to pose serious threat to the minority communities as well as the other communities as well in our circle. You have seen a lot of news going on with this issues day by day. Another major obstacle which I can overview, which I can see, is the lack of political will. There is a very lacking in that will, because while constitution is we have a very good constitution, like if I'm not wrong, that is article 20, 21, 22. It really, I mean, give a very good protection for the genuine to the people of minority. But we can see the I mean, there's a lack of implementation at the field level now. So I'm, you know, that I'm very much engaged to the community as well. The program which I'm running, we have a community engagement programs in those, infection prevention. So we usually dialogue with the different community. So I'm one of the implementers. So that's what I see, that the political will always come through, like when they are just implementing those political constitution on the ground. So at the ground level, that's what I've seen, that there's a very lacking of those things. Huh? So it's very important that if we want to move ahead or move forward, we need a legal reforms, inclusive education, stronger interfaith platforms, genuine political commitment. We can say that. So empowering minority voices is very important, and promote narrative of peace among the community, a minority as well the other community which is in majority. And there's always a keyword which I always use: a peaceful coexistence. Peaceful coexistence should be there. So it should be it's a key that we can be more tolerant and more harmonious in Pakistan. So I think that would be the answer which you have just the question you have shared. Yes, thank you so much. I think they're the very good points. And Dr. FIFA, you mentioned you are working with the community. So any specific challenges that when you're encountering with the community at the different levels, so they are what kind of the challenges that they are having at the different level in exercising their rights, especially when it's come to the minorities, because you have mentioned the misuse of the blasphemy law. So any examples you wanted to give that needs to be really taken care of at the different level, that we also need to highlight in at the different levels. So these are the basic challenges that they are facing at the different level, and how and what kind of the solutions and the remedies that they see that can be the possible ways to address that. So this is what we really wanted to hear from you. And also you can also throw a light, because how can the society overall and the parents, parents role is very much important, because our project is all about the parenting. So what kind of the role parents can play? I mean, how do you see their role at the different level to ensure the religious tolerance and to end the extremism at the different level? So these two questions I just really wanted to ask at this moment. Okay, first of all, as you talk about the challenges, so I will give you a few challenges, like the misunderstanding due to lack of interfaith exposure, among the community, which I usually see whenever we are going for the community engagement program. So there's a lack of there is a misunderstanding or lack of information, you can say, or a lack of awareness.
and misuse of digital platforms to spread misinformation. There is also a responsibility of the media. They are very precise about this interfaith issue. They don't broadening their, they are not they don't have any broadcast on this specific issue which is happening in Pakistan. We have seen there was a lady in a shop who was wearing a t-shirt having Arabic, there was a write up on that t-shirt. So there was an angry mob who just is a crowd and just came up to do something with her. But there was a man, there was a youth who was there to rescue that girl. And I'm very happy that that youth was, he belongs to a Christian community. So I really appreciate that a Christian person who has readily feel to support that women. He rescued on the first hand. He called 1-5, and then everything which has happened, we all have seen in the media. So what we see that there's a lack of, misinterpretation, a lack of information awareness among the community, misuse of the digital platform to spread misinformations, need for more frequent engagement between religious community. This is these are the challenges which we usually faced on the field. And with the opportunities we can give to them, that of course we know that this is a digital era, so we can empower youth. What we are doing in our community engagement, we are not talking with everyone, but we are engaging youth in our program, in our community engagement. They have very good will, they have very good motivation. They go to the community, they deliver their message very well, and the civil society to challenge harmful narratives. These people are very important. Even in that case, in that incident, when there's a woman who was very frightened with the angry mob, that was a youth who has challenged that harmful narrative. So we need youth to stand up to challenge these things. If there's an angry mob, there should be a positive mob who can challenge these things, who can stop these interventions at the same time. So we have to empower our youth, which is very important. The second option is that community response to insensitive action. What we are doing, our community, due to lack of understanding, they just keep quiet on such certain things. कि हमारे कोई दुश्मन बन जाएगा, we cannot say something. There was a recent incident of Rajab Bhatt. We can see that Rajab Bhatt publicly apology after criticism from Christian group. That was a great initiative by them. I really appreciate them again, that in all these circumstances we can see that the minority is raising that he has distrust the Muslim community. He hurt the Muslim community. So they ask for an apology, and he does apology after that. So it reflects the social accountability, you can say that. So it is very important that many religious leaders have expressed strong support for peace building, especially from the gurdwaras, from the mandirs, from the church, even from the madrasas. It's very important they just combine together and they just do certain things like that. So I think I have given the answer of the first question. Now, what about the parenting issues? Now, the second question is that how we as a parents can take care of our children and how we can deliver certain things to them. So it is very important to us, for us even, for a good society, for our upbringing, that we teach them respect from early childhood. So it is very important. Encourage empathy. Of course, we can see that the society we are developing is have a lack of empathy. So we have to develop that. We encourage, not develop, we encourage empathy. We must encourage people who are the saviors, who just stop these kinds of intervention. We must encourage and celebrate diversity is very important. If you are celebrating diversity, you are going to the different occasions, like Hindus come and eat. We are going there into their holy, and we are going to different platforms with the Christian people are making for us to go into them. So, and specifically promote critical thinking.
it is very important. We must ask that questions, children, that what are the questions rising in their mind, because when they're going outside the home, there are other society which are developing their mind in a negative like level. So when they're coming back to home, it is our duty to ask them that what they have learned from outside about the other community minorities and the diversities of the culture, of the religion, and specifically we should model the inclusive behavior into them. And there's further more points like build bridges through education. We can do that. We can correct their intolerance firmly but kindly. It's like correct intolerance firmly but kindly. You have to do this from the early childhood. Or in fact, engage in community service together. All together, we are engaging ourselves in community services. I think they will propagate best result. And about talk about common values. What are the common values among Christian? They even in Islam, if we say about in Islam, in Islam, we always said that come in a common terms first. So if you're talking about the common values, of course, this will propagate a peace and harmony among the interfaith and among the religion and among the diversity of the groups. And specifically, I always said that encourage friendship across faiths. अगर मेरे घर में क्रिश्चियन लोग भी आ रहे हैं, मेरी बहुत सारी दोस्त है क्रिश्चियंस हैं, मेरी बहुत सारी दोस्त है हिंदू हैं, and they're coming in my home, and we are having dinners, we having parties, we having a good relationship with each other. तो ये भी बच्चों के दिमाग में माइंड को बहुत बूस्ट अप करता है. इट ऑलवेज ब्रिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन देयर माइंड. सो आप बच्चे व्हाटएवर दे विल सी देयर पेरेंट्स डूइंग, दे विल ऑलवेज रिएक्ट ऑन देम, दे विल ऑलवेज मिमिक देम. वो उसी को पोर्ट्रे करते हैं. तो इट इज अ पेरेंट्स ड्यूटी टू डू सच थिंग्स, आई थिंक. Okay. Yes, thank you so much, Dr. Fifa. I think there's many good points from your side, and the way you are mentioning that what kind of the role that institution parents can play at the different level, and especially there is a lot of information. I think the role of the media is very much important. Peaceful education is very much important. Parenting role in accepting the diversity and celebrating the diversity is very important. Yes, these are the things that really be taken care of, and I think there should be the efforts at all level that we required, not only at the home level, but especially at the society and the institutional level, that we develop a very peaceful kind of the narrative for the religious tolerance at the different level. So thank you so much for this, and we will come back to you after other panelists when as soon as the discussion is carry on. So we do have मेरे ख्याल से हमारे साथ ताहिर महमूद गौरी साहब भी हैं. Thank you so much, sir, for joining us. Let me introduce Tahir Mahmood Gauri. He's basically the human rights activist, and he's connected with National Commission for Justice and Peace, and he's also, mashallah, doing a very good work for the minorities at the different level. And lots of activism for the minority rights of the faith-based community in the Pakistan. So we are going to hear from his point of view. So now we move on to the another panelist. We have Amir Wasim with us. I told you he's a very senior journalist. So Amir Wasim, thank you so much for joining us. और मेरे आपसे भी there are going to be the few questions जो कि मैं आपसे करूँगी, and you also heard Dr. Fifa as well. You also wanted to add into her discussion as well. So that is also most welcome. So आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, आमिर साहब, हाउ डू यू सी द ओवरऑल सिचुएशन, बिकॉज आपकी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र भी है, एंड यू आर राइटिंग सो हाई. आप लोग मिल भी रहे हैं कम्युनिटी से, और कुछ हमें थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास द काइंड ऑफ जो रिपोर्टेड इंसिडेंट ऑफ द वायलेंस है रिलेटेड टू द माइनॉरिटीज, related to the faith-based community, most of the time there are the reporting numbers, but most of the time there are the cases who are unreported, because people do have the fear that really they get justice at that level or not. So so थोड़ा सा हमने आप ये समझना होगा कि what can be done to improve the reporting mechanism. So we basically most of the time cases report भी हो जाते हैं, but the processes are too lengthy to follow them to get the justice and to
really get justice in that time, because and then if there are the good kind of the justice examples we have, so then we have less number of those incidents as well in the country. But we can see the Jadamala incident, we can see the other incident, because there were the, but I don't know what kind of the prospects happen after those incident. Are the perpetrators got the right kind of the punishments or not? So these are the things we really wanted to understand. Please do tell us how you see the overall situation for interfaith harmony and the religious tolerance in the country, and what kind of the gaps do you see at the different level related to the incident of violence, related to the reporting mechanism, and what do you see, what can be the ways that can improve especially at the institution level? Thank you, Natasha. I hope you are hearing me. Ji. I am not an expert in IT, so I am constantly facing problem in joining you. And No issue, no so issue. yeah, so I will be more comfortable in Urdu then. Okay, no issue. In the recent last week, the Black Hole arranged a seminar on the same issue, and we were all there. Tariq Ghori was there, and we talked on the issue in very details. So what I said there is that this is not the issue just with the minorities. When we talk about minority rights, and you look around, how many people we are in majority are getting our rights. We are also struggling. The journalists are struggling to get their rights. We are facing intimidation, and presently the press is under tremendous pressure. We have never seen such a situation, and our seniors told us that even this situation was not there when we had martial laws in the past. So media is also facing very serious situation, and media curbs are there, self-censorship is going on, everything. Similarly, if you look around, whether our children are getting their rights, our elderly people are getting their rights, our women are also facing discrimination, and they are also vying for their rights and struggling for their rights. So this is the issue with majority as well. So we should not confine our discussion only just to the minorities. Of course, they are marginalized people, and they are bearing the more brunt of all these things. But of course, this is an overall crisis we are facing in the country. And in terms of democracy, you see the frequent martial laws, interruptions. These are the factors all which have contributed to this situation. So मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा जो मेजॉरिटी के जो राइट्स हैं वो भी हमें नहीं मिल रहे, और जो ओवरऑल सिचुएशन है। और आपने एक इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, जो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे इस प्रोग्राम के हवाले से, और क्वेश्चन जो आपने भेजा, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी उनकी रेट नहीं है, हमारी जुडिशरी उस तरीके से काम नहीं करी जिस तरह से करना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, सिर्फ माइनॉरिटीज जो है वो अकेली नहीं है इसके अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज माइनॉरिटीज के जो है उनको ज्यादा इसका ब्रंट फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो तादाद भी कम है, और 96-97% तो मुसलमान ही है इस मुल्क के अंदर। तो इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। हमारी जो इस वक्त एजुकेशन सिलेबस की अगर हम बात करें, इस पर भी बात हुई थी। अभी डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। तो अगर हम इसको रिव्यू करें, लेकिन प्रॉब्लम यह है नताशा कि हमारे मुल्क में हम बातें तो कर लेते हैं, ये भी डिस्कशन हो रहा है, वेबिनार भी होते रहेंगे, जब प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की बारी आती है वहां पर हमें प्रॉब्लम फेस आते हैं। हमारे साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जब कंप्रोमाइज कर जाते हैं इन इश्यूज के ऊपर, तो फिर जाहिर है कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क के अंदर है, वो भी एक बतौर इंस्टीट्यूशन तो वो काम ही नहीं कर रही। एक तो ये भी बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मैं इसको हमेशा लिंक करता हूँ डेमोक्रेसी के साथ, आइन के साथ, कि हमारे आइन के अंदर, अब हमारे आइन के अंदर खुद डिस्क्रिमिनेशन दी गई है माइनॉरिटीज के हवाले से। जब आप कहते हैं कि एक माइनॉरिटीज जो है वो वजीर आजम और सदर नहीं बन सकते माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले, तो हमने उनको, एक तरफ हमारा आइन कहता है कि तमाम शहरी बराबर है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो सदर और वजीर आजम नहीं बन सकते, तो दिस इज आल्सो डिस्क्रिमिनेशन। और लेकिन अगेन बात वही है कि इस मुल्क के अंदर जो जिस तरह से इंटॉलरेंस बढ़ रही है, लोग अब बात करते हुए डरते हैं, देयर इज अ फियर, और इस फियर को खत्म करने की जरूरत है। मैं हर जगह पे यही बात करता हूँ। मैं
तारिक गौरी साहब इस बात के गवाह हैं, जहाँ भी हम बात करते हैं कि हमें पहले तो इस फियर को खत्म करना है कि हम ओपनली खुल के बात तो कर सकें। हमें तो यहाँ पे बात करते हुए भी डर लगता है कि अगर मैं किसी वाक्य को कोट करूं, अब आप कल ही का वाक्य ले लें, व्हाट हैपेंड इन कराची, जो अहमदी साथ हुआ है वहां पे, अहमदी जो मॉस्क, वहां पे जो अटैक लिंच कर दिया उस बंदे को। तो अब अगर मैं इस वाक्य पर बात करूंगा तो मुझे इस बात का भी डर है कि मुझे ही अहमदी ना डिक्लेयर कर दिया जाए, मुझे ही ना उनका सपोर्टर सिंपैथाइजर समझ के मेरे खिलाफ ही ना कोई कार्रवाई हो जाए। तो मैं बात करते हुए भी डरता हूँ। और ये जो एक खौफ है, इस पहले तो इस खौफ को खत्म करने की जरूरत है। एक ओपन डिस्कशन की जरूरत है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर सुनने का भी हौसला नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो उस मामले में और ज्यादा सेंसिटिविटी इसकी जो है वो बढ़ जाती है। और हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, जैसे आपने कहा कि क्या चैलेंजेस हैं, तो हमें तो और ज्यादा, क्योंकि हमें रिपोर्ट भी करना होता है, हमारे पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही होती है और हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके उसके जो रिpercussions हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हमें तो चले खैर, हम तो जो भी फेस करेंगे, लेकिन जो माइनॉरिटीज हैं या जो जो जिनके साथ वो वाकया हुआ है, उनके हवाले से भी हमें काफी जो है वो सोचना पड़ता है इस हवाले से। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें। सिर्फ आप किसी एक हुकूमत को और पेरेंट्स को या एजुकेशन को, सिर्फ एक को हम टारगेट करके नहीं कर, सबको मिलके काम करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि हुकूमत की और इदारों की जो जिम्मेदारी ज्यादा इसमें बनती है, कि वो हमारी तो पार्लियामेंट ही बेबस है दरताशा। हमारी तो पार्लियामेंट जिस तरह से काम करती है, वहां पे सिर्फ तकरीरें होती हैं, आपको मालूम है पॉलिसियां कहाँ बनती हैं। तो हमारे बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि डीप किस्म के इश्यूज हैं। और हम उसका सिर्फ एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और जब तक हमारा माइंडसेट डेमोक्रेटिक नहीं होगा, हम जमहूरी, हमारी सोच ही जमहूरी नहीं है। हम जो एक दूसरे की बात को सुनने को, जैसे मैंने कहा, तैयार ही नहीं है। तो जब तक हमारा माइंडसेट डेमोक्रेटिक नहीं होगा, तमाम के तमाम इश्यूज जो भी हम फेस कर रहे हैं वो इसी तरह के रहेंगे। और माइंडसेट डेमोक्रेटिक जो है वो किस तरह से होगा, वो जाहिर है कि इट टेक्स टाइम। ये जो हमारे मुल्क में इस पर जो हम चीजें फेस कर रहे हैं, ये कोई ओवरनाइट नहीं हो गई है। ये पिछले 50 60 70 सालों का जो है हम इस वक्त काट रहे हैं। जो जिस तरह से जनरल ज़ियाउल हक की जो पॉलिसीज थी, खास तौर पर 70s और 80s में, वो उस दिहाई में, जो 2 दिहाइयां हैं अगर आप उसमें देखें, डेकेड्स में, तो सबसे ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हमारे मुल्क में बढ़ना शुरू हुई। और उससे पहले ऐसा नहीं था जो हमें सुनने को मिलता है, और जो हमने पढ़ा भी है, और जो हम अगर हम पुराने अखबारात देखें और पुराने रिकॉर्ड देखें, तो उससे भी हमें अंदाजा होता है कि आवर सोसाइटी वाज वेरी टॉलरेंट एट दैट टाइम। और ये सारा जो 77 के बाद से लेकर, जो ये हमारा सिलेबस के अंदर भी जिस तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर रिलीजियस कंटेंट को डाल दिया गया है, और हमारे जो माइनॉरिटीज हैं वो बिल्कुल मार्जिनलाइज से मार्जिनलाइज होते चले गए। तो ये जो ओवरऑल इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो अशराफिया है, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट का बहुत अहम रोल है, सियासी जमातों का बहुत अहम रोल है। बदकिस्मती से, जैसे मैंने कहा, वो भी कंप्रोमाइज कर जाते हैं। हमारे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो अपनी स्ट्रीट पावर यूज करते हैं, और उनकी जो स्ट्रीट पावर है, जाहिर है कि वो मजहब के नाम पर लोगों को मोबिलाइज करना बहुत आसान होता है, उनको इमोशनली आप मोटिवेट कर देते हैं। तो लिहाजा हमने देखा है कि हमारी स्टेट सरेंडर कर जाती है बहुत से मौकों पर, ऐसे मौकों पर। और जैसे हमने टीएलपी के बेशुमार हमने मुजाहरे देखे, धरने देखे, कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रोटेस्ट करना चाहती है, तो उसके लिए तो पुलिस जो है वो फौरन एक्टिव हो जाती है, उनको ओवरनाइट क्रैक डाउन होता है, और उनको नहीं करने दिया जाता जल्द से जुलूस। और लेकिन जब कोई रिलीजियस ग्रुप आता है, तो वो ना वो इजाजत लेता है डिप्टी कमिश्नर से, ना उनको किसी से एनओसी लेने की जरूरत है। वो जिधर दिल चाहता है धरना दे देते हैं, बैठ जाते हैं, और फिर उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं, और फिर उसके बाद उनके मुतालबात मान भी लिए जाते हैं। तो इसमें रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी स्टेट रेट जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो हमारे 2 सूबों में जो सूरत हाल चल रही है, बलूचिस्तान में और केपी के अंदर, तो वहाँ टेररिज्म के हवाले से भी, तो जब रेट ऑफ द स्टेट ना हो, आपके पास पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरह से फंक्शनल ना हो, पावरफुल ना हो, आपकी जुडिशरी अपनी तरह से काम ना कर रही हो, तो फिर ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, या जो हम रिकमेंडेशन अगर हम देते भी हैं और उनकी पॉलिसी के हवाले से, तो वो कहाँ जाएंगी।
ये भी हमें इस पे सोचने की जरूरत है। मेरा ये ख्याल है कि हमें इस किस्म की डिस्कशन में मैंने देखा है जितने भी एनजीओज और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म पर हम ये डिस्कशन करते हैं, मुझे कभी वहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आई। मतलब आज भी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई तो यहाँ होता कि जो हमारी बात सुनता और उसके बाद वो कन्वे भी हो वहां पर। तो मैं नहीं समझता कि हम आपस में तो जरूर बात कर लेते हैं, एग्री भी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आई सी लाइक माइंडेड पीपल डिस्कसिंग द इश्यूज, बट इन चीजों को आगे तक पहुंचाना और उसको फॉलो अप करना जो है वो बहुत जरूरी है। मैं पिछले 10 साल से यही डिस्कशन सुन रहा हूँ कि सिलेबस में ये है, सिलेबस में ये है, सिलेबस में इस तरह से चीजें हैं, एजुकेशन के अंदर ये है, लेकिन उसमें हो कुछ नहीं रहा, हम आगे नहीं बढ़ रहे। इसी तरह पार्लियामेंट के हवाले से जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की पोलिटिकल पार्टीज के अंदर आप देख लें उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है। हम तो ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को माइनॉरिटीज के लोगों को जनरल सीट्स पर टिकट देनी चाहिए, लेकिन आप देख लें कितने उनको इस किस्म के हमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस चीज को करती हैं। लेकिन बातें सारी पार्टीज करती हैं, हम भी करते हैं, लेकिन आप देख लें कि आज भी वही माइनॉरिटीज की जो 10 सीटें हैं पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, उसी तरह चली जा रही है। और उनका भी जो इलेक्शन जिस तरीके से होता है, आई डोंट कंसिडर देम द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द माइनॉरिटीज। जिस तरीके से दे कम इन द असेंबली, कितने पैसे दे के ही आते हैं, ये वो माइनॉरिटीज नहीं है जो कि रियली इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, जो सिंध के अंदर हिंदूज रह रहे हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर रह रहे हैं। ये तो दुबई में बैठे हैं। कोई अभी आपने देखा होगा जो पिछले इलेक्शन में जो इशू बना एमक्यूएम की माइनॉरिटी की सीट के ऊपर, जो वो करोड़ों रुपए देके उसने टिकट लिया है। आप हम हमारे एक माइनॉरिटी के मेंबर है जो इनको मैं पिछले 3 इलेक्शन में मैंने 3 डिफरेंट पार्टीज में देख लिया उसको। सो जो हमारे माइनॉरिटीज की जो कम्युनिटी है, इनको इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट के अंदर भी मैं समझता हूँ कि नहीं है। इनकी वॉइस जब पार्लियामेंट के अंदर नहीं है तो मैं और आप इनकी आवाज कहाँ उठाएंगे? सो दैट इज, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं तो इसको आइन, डेमोक्रेसी और ये जो हमारा ओवरऑल एक मुल्क के अंदर जो एक डिक्लाइन है हमारे, मैं तो उससे इसको लिंक करता हूँ माइनॉरिटीज के तमाम इश्यूज से। हम्म। नहीं, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आमिर साहब आपने बड़ा डिटेल में इसके ऊपर बात किया है, और जो कुछ चीज़ें जो मैं आपकी डिस्कशन से ग्रैब कर सकी हूँ कि वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने काइंड ऑफ द फियर मेंशन किया है, द फियर इज इन द सोसाइटी, बिकॉज इफ वी अगर हम बात भी करेंगे तो वी डोंट नो कि उसके ऊपर क्या आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि आमिर साहब, फियर इज देयर, बट द थिंग इज कि वाई वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ द डिस्कशंस एंड why we are having this kind of the forums, because we really wanted to overcome those fear. We really wanted to speak about the issues, because unless we are not speaking about the issues, we are not going to find the solution, and we are not going to reach out the relevant stakeholders. यहाँ पर आपने बात की है कि पूरी स्टेट की रिट नहीं है, पार्लियामेंट पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है वो उस तरह से नहीं है जैसे होना चाहिए था। माइनॉरिटीज को और मेजोरिटीज को दोनों को काफी ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। और जहाँ पे आपने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की यहाँ पे भी बात की है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी हाईलाइट, बिकॉज वी आर हैविंग दीज वेबिनार सेशन, यहाँ से जो भी रिकमेंडेशन होंगी, हम वी आर गोइंग टू मीट सम पार्लियामेंटेरियंस, बिकॉज अभी भी आरिफ जेम्स साहब, वी आर ऑल्सो कनेक्टिंग विद द जो हमारी रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग लाइन अप है। होपफुली विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स में हम उनसे मिलेंगे। सो वट एवर द डिस्कशन वी आर हैविंग, इनमें से जो भी रिकमेंडेशन निकलती है, वी आर actually putting in front of them. So it is not only to have the discussion, but to see कि हम किस तरह से इन चीज़ों को further take up कर सकते हैं। जहाँ तक बात आपकी है कि democratic mindset नहीं है, इवन के हमारा आइन भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, सो वी रियली वांट कि हम यही चाह रहे हैं कि इस तरह की डिबेट्स हों, चीज़ें निकले, ताकि हम उनके ऊपर फर्दर कोई अपनी एडवोकेसी का लाए अमल भी तैयार कर सकें कि किस किस लेवल के ऊपर हमें अपने माइनॉरिटीज़ के राइट्स को रिप्रेजेंट करना है। एजुकेशन की बात की है तो हमारा इदारा इस प्रोजेक्ट के अंडर एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहा है। हमने अभी प्राइमरी लेवल का सिलेबस हमने रिव्यू किया है, और उसके ऊपर हमने रिकमेंडेशंस भी प्रिपेयर किए हैं, जो कि फर्दर अभी हमने उनको स्ट्रेंथन करना है। वी आर, और उसके अलावा हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के पास वो रिकमेंडेशंस लेकर जाएंगे कि अभी भी क्योंकि हमने उसको प्राइमरी लेवल से कि एजुकेशन के लेवल के ऊपर क्या गैप्स आ रहे हैं। सो ये चीज़ें बिल्कुल हमारे साथ हैं। आपके पॉइंट्स भी बड़े वैलिड हैं कि जो ओवरऑल स्टेट की रिट मिसिंग है, फिर जिस लेवल के भी माइनॉरिटीज के लेवल पे भी चैलेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा मेरा सवाल आपसे इसी से रिलेटेड मजीद होगा कि आप ये सारी चीज़ें मेंशन मतलब हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पॉलिसी एंड प्रोग्राम लेवल के ऊपर, मतलब अभी भी इंस्टीट्यूशंस को या गवर्नमेंट को और किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए कि ओवरऑल हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा बेहतर कर सकें? तो ये थोड़ा सा मुझे आपसे अगर इसके ऊपर आप बता सकें। आप हैं हमारे साथ आमिर वसीम साहब?
आई थिंक वो नहीं है, तो मैं तारिक गौरी के साहब के पास ये चीज़ लेकर जाऊंगी कि सर आपने सुनी ये डिस्कशन भी आमिर साहब की, और हमने उनके पॉइंट्स भी रेज किए हैं। सो तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और थोड़ा सा आप अगर इसी डिस्कशन को फॉरवर्ड करके चलें, और थोड़ा सा अगर आप बताएं कि किस तरह से हम इस पूरी सिचुएशन को, मतलब हम अगर पॉलिसी और प्रोग्राम लेवल के ऊपर देखें, हम वहीं पे फिर इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का रोल की बात कर रहे हैं, सो हम इनको किस तरह से मजीद बेहतर कर सकते हैं। और आप क्या समझते हैं, बिकॉज आप बड़ी स्ट्रांगली कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं, कि किस लेवल के प्रॉब्लम कम्युनिटीज, फेथ बेस्ड कम्युनिटीज फेस कर रही हैं, और इवन के जैसे आमिर वसीम साहब ने कहा कि ना सिर्फ माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज का भी ये इशू है कि उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा आप इन चीजों को जरा हमें हाईलाइट करें कि आप इसके ऊपर क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने जरताशा, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर भाई ने बहुत अच्छी बातें की, और जैसे वो कह रहे थे कि हम तो खैर हम तो यही करते हैं, मतलब ओढ़ना बिछोना ही कह लें या जो भी है, हम कोशिश करते हैं कि तब्दीली के लिए, और ये हमने सीखा अपने बड़ों से। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ताहिर अब्दुल्ला, फलाना बारी और ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अब इस्लामाबाद की बात करें अगर, तो मैं क्योंकि इस्लामाबाद से हम बिलोंग करते हैं, तो हमने इन लोगों को देखा। अभी आय रहमान साहब का नाम है, मतलब इस तरह से लोग हैं जिन्होंने अपने अपने अदवार में, और मेरे समझते हूँ कि उन्होंने बहुत काविश और कोशिश की है कि आमिर साहब आ गए। आमिर भाई आप सुन रहे हैं? सर जरताशा आपसे बात कर रही थी, लेकिन शायद आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, तो मैं ज़रूर आसमा बीबी का भी नाम लेना चाहूँगा, आसमा जहांगीर साहबा का, कि बहुत लैंडमार्क उनका काम है, और मेरे ख्याल में उसका कोई अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा कि उनके कोई वो कर सकेगा। और जो उनकी शख्सियत थी और जो उनका काम था, और जो खासतौर पे पिछड़े हुए तबकात के लिए उनका काम था, मिनॉरिटीज़ के रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के साथ उनकी जुड़त थी। मैं समझता हूँ जो जुड़त थी उनकी, वैसी जुड़त वो मिनॉरिटीज़ के लोग, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लोग, शायद मेरे सीनियर्स या उस तरह से अगर हों तो इस बात को समझें या माइंड करें कि मेरे ख्याल में आसमा जहांगीर के होते हुए जिस तरह से रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग खास तौर पे समझते थे अपने आप को महफूज, या उनकी आवाज़ थी वो, वैसी आवाज़ दोबारा हमने फील नहीं किया कि दोबारा कोई पैदा हुई है। और शायद रिसेंट पास्ट, अभी तो मुझे फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे बड़े करीबी, मैं सबको मैं थोड़ी तहमीद बांधी थोड़ी, इसके लिए माजरत। तो मुझे थोड़ा सा इजाजत दे दरताशा कि मैं शुरू से अगर अगर मुझे इजाजत दें, कि जैसे आमिर भाई कह रहे थे कि हम उस दिन भी एक वेबिनार, सॉरी, हमने ब्लैक होल में थे, तो हमने तो टॉपिक की वो तजवीज यहाँ पे रखा था कि जिनाह के पाकिस्तान में मजहबी अकलीतों का मुकदमा। तो हम इसमें ये मतलब बात करने का मकसद ये होता है ना, आप बात करते हैं, बात रखते हैं, और जितनी बात रखते हैं, जितनी बात करते हैं, उससे आपकी बात बढ़ती है। हमने तो उन लोगों तक जैसे आमिर वसीम साहब अभी कह रहे थे और दोस्त कह रहे थे कि हम यार यही बातें सुनते हैं, हम लाइक माइंडेड हैं, और उस दिन भी वो कह रहे थे, और मेरे ख्याल में ठीक कह रहे थे। लेकिन बात यह है कि हमने अपने उस सर्कल को, अपने हल्के को बढ़ाना है। तो आप यहाँ से शुरू करें कि 11 अगस्त की तकरीर देखें। मैंने उस दिन भी ये कहा था, ये दोबारा कहता हूँ कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जो शख्सियत थी, वो जदीद तराश खराश के सूट 80 साल पहले पहनते थे, सिगार पीते थे, कुत्ते पालते थे, उनकी बहन उनके शाना बशाना काम करती थी और उनसे आगे काम करती थी, और वो हर जगह पे जलसे जुलूसों में उनको साथ रखते थे। तो रिलीजियस मिनॉरिटीज के लोगों ने इसी में अपनी बका जानी ना, कि ये जो मतलब उस वक्त ये कहा गया कि हिंदू क्योंकि वो जात पात पे वो करते हैं, और जो हम लोग होंगे वो फिर चौथी उनकी वो उससे भी नीचे होंगे, शूदर से भी नीचे होंगे, वो उनकी जो जात पात का निज़ाम है। तो दीवान बहादुर, एसपी सिंघा, जोगिंदर नाथ मैंडल, यू नेम इट, मैं सबके नाम मेरे पास है। मैंने एक असल में लिखा हुआ था, वो मैं आपको उसके भी बताता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वो उस तरह से, आपको पता है कि कल ईद है, तो कुछ चीजें आगे पीछे हो गई मेरी उसमें ना, बच्चों ने कर दी। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान कासिम मोहम्मद अली यहाँ की पहली तकरीर थी, ये एक्चुअली उससे पहले भी जो तकारीर हैं उनमें तादाद हैं, जो आमिर भाई हैं, दानिश्वर लोग बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि यार तादाद कॉन्ट्रडिक्शंस थी। लेकिन आमिर भाई वो जो स्पीच थी वो रोड मैप था, वो फ्लोर ऑफ दी हाउस की स्पीच थी, और वो आपको बता रही थी कि इस मुल्क में रहने वाला कोई हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, कोई मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा,
कोई क्रिश्चियन क्रिश्चियन और कोई क्रिश्चियन अपने चर्च में जाए, कोई मुसलमान अपनी मस्जिद में जाए, कोई हिंदू अपने मंदिर में जाए, किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी, यू नो। तो ये रोड मैप था। और वो जो फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच कर रहे थे, किसी जलसे जुलूस में स्पीच नहीं कर रहे थे। और उसमें एक और सिंबॉलिक आपको बात बताऊं, उस जो पाकिस्तान की पहली ज़ाहिर कानून साज वो दस्तूर साज जो भी कहें असेंबली थी, उसमें कायद के होते हुए, मोहम्मद अली जिन्ना के होते हुए, उसकी इजलास की सदारत जोगेंद्र नाथ मंडल कर रहे थे। यू नो, जोगेंद्र नाथ मंडल इज अ छूत हिंदू रहनुमा। अछूत मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ, मतलब क्योंकि कहते हैं छूत, इस तरह उनका लिखा जाता है ना। तो उसके अलावा देखे, उसी असेंबली में उस 12 वुजरा थे एग्जैक्ट, ठीक है। उन 12 में से सरदफुल्ला खान अहमदी थे, ठीक है। और आपके जो वजीर खारजा थे, यू नो, वजीर खारजा थे, बहुत कॉम्पिटेंट वजीर खारजा थे, एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूँ, और एक बात, जोगिंदर नाथ मंडल वजीर तालीम थे, ठीक है, जिन्होंने आपका निसाब बनाना था, ठीक है, जिन्होंने आपका निसाब बना के देना था कि हमारे बच्चे कौन सा निसाब पढ़ेंगे। आप सोचें इससे, यू नो, आप रोड मैप का अंदाजा लगाएं कि कायद कैसा पाकिस्तान, कैसा विजन देख रहे थे कि ये वाकई सेकुलर, यू नो, मैं आई मीन इट, कोई वाकई सेकुलर पाकिस्तान की बात कर रही थी कि हिंदू एक बंदा आपका निसाब बना के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहा है, तो वो कैसा होगा। और वो उस जलसे उस वो, यू नो, उसकी सदारत फरमा रहे थे जोगिंदर नाथ मंडल कायद मोहम्मद जिन्ना के होते हुए। एक बात तो ये, कल जो अहमदियों का के साथ हुआ, एक नौजवान की मैंने तस्वीर देखी, आमिर भाई ने बात की, मैंने तस्वीर शेयर नहीं की, लेकिन खबर मेरे तक बहुत पहले पहुंच गई थी। तो कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ इसलिए मार दिया जाए, आप अपने एटमी साइंसदान, जिसका काम, जिसकी यू नो नाम पूरी दुनिया मानती है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का, लेकिन आप उसको नहीं ऑन करते क्योंकि वो अहमदी थे। और आपने अपना, यू नो, एटमी प्रोग्राम भी किसी और के सर पे सहरा लगा दिया, जो कि उसका काम भी नहीं था। मैं चले उस बात में नहीं जा रहा। आपके पहले, यू नो, पाकिस्तान के पहले दोनों दोनों जर्नैल्स, CNC, दे आर क्रिश्चियन, गोरे थे लेकिन क्रिश्चियन, ठीक है। आर्मी चीफ दोनों क्रिश्चियन थे। अब यू नो, आपका जो एयर चीफ था वो भी क्रिश्चियन था। ऐसे करते करते आगे आते जाएं। फिर आपका पहला जो हम कहते थे ना जी, पाकिस्तान को हम कहते थे, अभी हम कहते हैं ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, नहीं, अवामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है जी। अवामी जमहूरिया पाकिस्तान था ये 56 में। मैं अपने वो आपको एग्जैक्ट मेरे उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने पहले कर दिया कि फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कर दिया, ठीक है ना जी। और इससे पहले एक जो बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि आपकी, जिसको पंजाबी में कहते हैं बेड़ियों में पत्थर डाल दिए ना, वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम करारदाद मकासिद के नाम से याद करते हैं, जो 1949 में, यू नो, पास हुई। और उस वक्त की मिनॉरिटीज ने, उस वक्त मिनॉरिटीज के लोग चले गए थे। जोगिंदर नाथ मंडल उसके बाद चले गए थे। दीवान साहब को तो पहले ही हार्ट अटैक हो गया था, दीवान बहादुर SP सिंघा को, क्योंकि और दीवान बहादुर SP सिंघा की, ये मैं बात खत्म कर लूं पहले, कि आप देखें कि उन्होंने, ये मौलवी अब्दुल हक थे और चौधरी खलीकुल जुमा थे, ये वो लोग थे जिनके बारे में कायद ने कई दफा कहा था कि मेरी जेब में जितने सिक्के हैं वो सारे खोटे हैं। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये हिस्टोरिक फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। और जो कायद की स्पीच के ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गई ना जी, तो अगर आप जाना चाह रहे थे मशरिक में, तो ये हमें जनूब में लेके चलेगी, ठीक है। आप देखें, आपकी स्टेट का, यू नो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आपकी स्टेट, यू नो, आपकी रियासत, अब मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरी दीवारें हैं, मेरा छत है, तो यू नो, रियासत का तो मजहब, ये मेरी छत का तो मजहब नहीं हो सकता, मेरी दीवारों का तो मजहब नहीं हो सकता। मजहब तो अगर है या नहीं है तो मेरा है ना। तो ये आपकी स्टेट का मजहब है। मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही कोई और मुल्क है जिसकी स्टेट का रिलीजन है। स्टेट का रिलीजन होगा, फिर ये मैं पूरी ऑब्जेक्टिव से आपको नहीं बता रहा, तो उसने हमारी पूरी की पूरी, यू नो, डायरेक्शन चेंज करके रख दी। हम मशरिक में जा रहे थे, तो हमें जनूब में लेके चलेगी, एक चीज ये है, ठीक है। फिर आप दीवान बहादुर सिंघा की बात करें, तो पाकिस्तान का 75% सॉरी 50 कह रहा हूँ, 65% तकरीबन, अभी भी मोर देन 65 पंजाब है जी, आपका पंजाब है जी। आपके लिए पंजाब का डिसाइडिंग वोट दीवान बहादुर SP सिंघा ने आउट ऑफ द बॉक्स डाला था जाके जी, क्योंकि स्पीकर को कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ द हाउस। फादर ऑफ द हाउस वोट नहीं कास्ट करते, बहुत ही खास मौकों पे कास्ट करते हैं। कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ सिचुएशन हो जाए जो थी उस वक्त, क्योंकि अगर हमारे पास पंजाब नहीं आता तो सारा का सारा इंडिया में चला जाता, तो बाकी फिर पाकिस्तान कैसा होता आप देख लें। अभी जो मौजूदा पाकिस्तान है, अगर आप बांग्लादेश को निकाल दें, क्योंकि वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, उस वक्त एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब था हमारे पास, फूड बास्केट थी और ये वो, लेकिन दीवान साहब ने उस पर आउट ऑफ द वे जाके वोट दिया, आउट ऑफ द बॉक्स वोट दिया, और कायद के कहने पे जाके दिया। जैसे मैंने पहले उनकी आपको, यू नो, क्वालिटीज गिनवाई हैं,
कायद की ये क्वालिटीज थी, और वो रियल एक सेकुलर शख्स से सिगार मतलब रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो एक आप मैंने अब टी शर्ट पहनी है, तो किसी से मुझे आप आपके पहरन से आप पहले अंदाजा लगाते हैं ना कि इंसान कैसा होगा। आप आपकी बहन आपके साथ शाना बशाना काम कर रही थी, अब दिन रात आप बात नहीं, ठीक है थोड़ी बहुत की, लेकिन मैंने वो कह दिया कि ठीक है, उनसे हर बंदे से सियासी गलतियां वगैरह हुई होंगी, लेकिन दीवान बहादुर सिंह का स्पीकर थे, और जब वो उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट डाल दिया, तो थोड़ी देर के बाद उनको स्पीकरशिप से हटा दिया गया, ये कह के कि आप क्रिश्चियन हैं, और उसके बाद जनाब को हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, तो वो बेचारे चले गए। ठीक है, उनकी फैमिली भी पाकिस्तान में नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाली हमारे पे वो डाल डाल दी, और जंगेंद्र नाथ मेंडल साहब भी चले गए, और जिस तरह से उनकी बाकी जिंदगी वहां पे गुजरी, क्योंकि इंडिया वालों ने कहा कि वो जब वहां चले गए तो उन्होंने कहा ये जासूस है, मतलब गद्दार है, तो वहां पे बहुत ही कसम पुरसी की जिंदगी, और ऐसी हालत में उनकी कहते हैं जो क्या कहते हैं जो खैमे नहीं होते उसमें वो जिंदा थे, उसी में रहते थे, और उनकी डेथ होगी उनकी, उन्होंने भी कबूल नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं, ये शुरू दिन से ही आप देखें ना, कि अभी आप अहमदियों की बात कर रहे हैं, कल उन्होंने मतलब मार दिया, उनके मसाजिद से कब्रों से लोग निकाल रहे हैं यार, खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान में 96.4 या 3% आप सारे मुसलमान भाई रहते हैं ना, तो उसके बाद 3%, 3.5% लोगों में से 3.5% लोगों से कोई इस्लाम को खतरा है, फिर अहमदी तो बहुत ही थोड़े हैं। ठीक है, क्रिश्चियन मतलब इस तरह से करके आप मुझे बताएं, दुनिया के किसी और मुल्क में है, दुनिया के किसी और जगह पे है, आप सोच सकते हैं कि ऐसे हो सकता है। और फिर आप देखें ऐसे कवानीन, जैसे मैंने पूरी वो बनाई थी, सॉरी मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो बड़ा बड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं रात को बैठा रहा काफी देर उस पर मैं काम करता रहा, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे आए सुबह हमारे मेहमान, तो उन्होंने चीजें मेरी उठा दी टेबल से। तो मैं आपको पूरी लेजिस्लेशन देखिए, आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि हम सब बराबर के शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं, तो कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि मैं सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता। अच्छा, 56 तक मैं सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता था, उसके बाद जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हुआ तो प्राइम मिनिस्टर का भी कर दिया, 18वीं तरमीम में दोबारा ये कर दिया है, 18वीं तरमीम पीपल पार्टी मेरी पार्टी ने की। जी तारिक साहब, we lost you. जी आई थिंक तारिक साहब को कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, मैंने उनको मैसेज भी अभी भेजा है। सो आई थिंक देयर वाज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि तारिक साहब से हमें मिली है। बेसिकली द टाइम ऑफ द कायद आजम दैट ही वाज मेंशन कि व्हाट काइंड ऑफ द policies in the programs, like what kind of the procedures were going where minorities were very much supported, लेकिन वहाँ उस टाइम पे भी there were so many challenges. एंड आई थिंक के वो सारी चीज़ें जो अभी हम उस पर नहीं कर सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब आया, ऑल्दो के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आमिर साहब ने बात की और तारिक साहब भी हमें बता रहे थे कि देर आर द आर्टिकल्स जो कि सपोर्ट करते हैं कि सिटीजन्स इक्वल भी हैं, बट देन देर आर दर सम डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एज वेल। तो अब वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिबेट किस तरह से कर सकते हैं। एंड वी नो के माइनॉरिटीज जो है वो 6 to 7% हैं, बट द थिंग इज के जब पाकिस्तान आया, so there was a lot of discussion because there are the white part for the minorities and the green part is for the Pakistan, but the thing is for the majority people, but the thing is that we really want to see that kind of the Pakistan, the Qaeda-Azam's kind of the Pakistan, where we really want that the faith-based community must be increased in number, and they must be work hand in hand with the other faith as well, that we really wanted to see a very secular kind of the Pakistan, that where all the faith-based communities have a very peaceful coexistence at the different level. And now through these discussions and through these small projects, we are initiating the kind of the not only the debate, but we are also trying to initiate some kind of the action जो अभी तो हम बड़े स्मॉल लेवल पर कर रहे हैं, बट लेटर ऑन वी विल बी टेकिंग
taking into the advanced level, where we also talk about the policy and program level, like where we see जो discriminatory practices आइन के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कि उनको हम किस तरह से मजीद उनके ऊपर डिबेट किस तरह से करें। और आमिर साहब, आप उस टाइम पे यू वर नॉट देयर, बट आई रियली वांटेड टू आस्क कि जो हमने कि किस तरह के मजीद मेजर्स हम ले सकते हैं। तो मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। हमारे पास हमारे लास्ट पैनलिस्ट हैं आरिफ जेम्स साहब, उनसे मैं ये डिस्कशन कैरी ऑन करूंगी, एंड देन आई विल कम बैक टू यू आमिर साहब एंड अफीफा एज वेल फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जो कि तारिक साहब ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमारे साथ मेंशन किए कि फ्रॉम द टाइम ऑफ द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द काइंड ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट गोइंग ऑन, जो उनकी 11 अगस्त की स्पीच भी थी जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इन्फोर्स कर रहे थे, सेकुलर पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वेयर एवरीवन, ऑल द फेथ बेस्ड कम्युनिटी, आई डोंट वांट टू यूज द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो इकलियत के भी वर्ड को, अब जब हम वी आर द सिटीजन पाकिस्तान, वी आर द इक्वल सिटीजन, so there should be some proper pronunciation for the thing, so we can say that the faith-based communities, but we shouldn't be हम उनको कहीं पे भी underestimate नहीं करें। So we have William Pervez with us, he also wanted to speak, sure William, I will come to you, हम आरिफ साहब से बात कर लें, उसके बाद I'll speak to you, and फिर हम अपनी इस further discussion को conclude करेंगे अपने panelist के साथ। So आरिफ साहब, thank you so much for joining us, आपने सबको सुना, आमिर वसीम साहब को भी सुना, तारिक महमूद गौरी को भी सुना, अफीफा से भी सुना। सो हम डिस्कशन जो क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हुए थे उनको भी देखते हुए, लेकिन थोड़ा आप इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आप करें कि आप, क्योंकि हमारे साथ पेरेंटिंग के प्रोजेक्ट में भी हैं, अभी हम बहुत स्मॉल किस्म के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट। सो आप क्या समझते हैं कि मजीद जो बेहतरी की ज़रूरत है हमारे स्पेशली सोसाइटी के लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल के ऊपर, पेरेंट्स के लेवल के ऊपर, कि हम कैसे एक पाकिस्तान को एक बहुत ही अच्छा, जो तमाम मज़ाहिब के लिए एक बहुत ही पुरअमन माशरा बना सकें, जहाँ पे तमाम मज़ाहिब को मजहबी, ना सिर्फ मजहबी आज़ादी हो, बल्कि उनके अंदर इतना ज़्यादा भाईचारा और इस तरह का हो कि वो अपने एक दूसरे के लिए स्टैंड करें। जो अहमदी कम्युनिटी का भी वाकया हुआ, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी इस तरह के फेसेस हुए हैं। पेशावर में हमने देखा कि एक हमारे हिंदू भाई का मर्डर हो गया, इसी तरह से और बहुत सारी कम्युनिटीज़ को भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं, डिफरेंसेस हैं, और फिर बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस का जो लेवल है। फिर हम देखते हैं जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, जो मेजॉरिटी के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा लीवरेज दिया हुआ है, जैसे वो भी बता रहे थे आमिर वसीम साहब की टीएलपी का, जिस तरह से इनके जब रिलीजियस होते हैं तो कोई बैलेंस चेक नहीं होता, सम टाइम ये पॉलिटिकल मकासद के लिए भी यूज़ होते हैं, जिनके थ्रू यूज़ होते हैं उनको भी पूछने वाला कोई नहीं होता। तो इन सारे पैराए में आरिफ साहब आप क्या कहना चाहेंगे, और इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे, क्योंकि आप भी इन तमाम चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट के साथ बड़े कनेक्टेड है, अपनी कम्युनिटी के साथ बड़े कनेक्टेड हैं, अदर फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर रोशनी डालें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम अरेंज किया, और ये लाइफ में मेरी फर्स्ट टाइम है कि लाइव हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने तमाम उन दोस्तों के साथ मिलकर एक अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। सो ऑल टीम्स और आपकी मेहनत को मैं सल्यूट करता हूँ, और नेक्स्ट मैं होप करता हूँ कि हम सब मिलकर एक टीम वर्क में अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर हम काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मुझे ऑब्जेक्शन इस बात का है कि हर कोई, जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, वो कहते हैं मिनॉरिटी। वाई मिनॉरिटी? वी आर ऑल पाकिस्तान, चाहे उसमें क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, पारसी है, कोई भी हैं, हम सब पाकिस्तानी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर हमारे रिलीजन। वो भी रिलीजन इसलिए है कि मैं अगर क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हूँ तो मैं क्रिश्चियन ही कहलाऊंगा, और इसके अलावा जो अगर मुस्लिम फैमिली में हुआ तो मुस्लिम ही होगा। हमें मिनॉरिटी का लफ्ज नहीं इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि मिनॉरिटी में तमाम मज़ाहिब आते हैं, मैं मान, लेकिन क्रिश्चियन मैं होने के नाते से। हेलो जी जी जी, मैं म्यूट कर रही हूँ। जी जी जी।
तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के होने के नाते से मुझे बड़ा फख्र होता है कि आई एम प्राउड ऑफ आई एम पाकिस्तानी, और बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी शान और शौकत इस मुल्क से है। सेकेंडली क्वेश्चन ये किया गया कि जी बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर स्टडी के लिए मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको शो करूंगा। जैसे एग्जांपल, हम शादी के लिए मियाँ बीवी बच्चों को प्रेफर करते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे मियाँ बीवी का एक रिलेशन हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारी ज़र आमदनी क्या है। आया क्या हम आफ्टर मैरिज 4-5 बच्चों को अफोर्ड कर सकते हैं? सेकेंडली, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे पास जॉब भी नहीं है, तो हम उन बच्चों के फ्यूचर के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ना हम उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, ना उनको बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं। सेकेंडली, इसी तरह से हम आगे चलते हैं सियासत में, हमें अपने हक लेना ही नहीं आते। अगर है भी हैं हमारे हक तो हम मांग नहीं सकते, तो कम्युनिटी के उनसे मैं चाहता हूँ कि हमारे क्रिश्चियन लोग आपके पास आए हैं अपने कोटे लेने के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए, कि जॉब्स के लिए। अगर आते भी हैं तो रिकमेंडेशन होती है, लेकिन वो हाई पोस्ट के लिए नहीं होती, लोएस्ट पोस्ट के लिए, जिसमें 4 लेवल की आ जाती, 4 स्केल की आ जाती है, इसी तरीके से। तो ये हमें चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, हम पहले सबसे पहले कानून को समझें, एहतराम करें, और उसको हम आगे कंटिन्यू लेके चलें, और अपनी एजुकेशन के मुताबिक बच्चों के लिए फ्यूचर का प्लान बनाएं। और इसी तरह से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे तो अब मैडम माजरत के साथ तमाम उन सियासतदानों से भी, कि अब हमारे मुल्क में सियासत नहीं है, बिजनेस है। सियासतदान थे लियाकत अली खान साहब, जब वो शहीद हुए लियाकत अली बाग में, तो जब उनको गुस्ल दिया गया, तो जब वो गुस्ल के दरमियान जब उनके वो कपड़े उतारे तो बनियान नीचे से फटी हुई थी। मकसद है कि वो सिंसियर लोग थे। इसी तरह से बेनज़ीर मोहतरमा भुट्टो साहबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहबा, उन्होंने अपना खानदान इस मुल्क को दिया, और इसी तरह शहबाज भुट्टी साहब भी थे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, मेरा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं है, मगर मुझे पेन होती है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। आज भी हम किसी से भी पूछें पाकिस्तान की आबादी कितनी, किसी को पता ही नहीं। कोई कह रहा 22 करोड़, कोई कह रहा 25 करोड़, कोई कह रहा 30 करोड़। तो हमें तो अपनी आबादी का ही नहीं पता, हमने काम क्या करना है। तो हमें तो सबसे पहले एक प्लान बनाना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। और सेकेंडली, कि हम जो इतने बड़े बड़े सेशंस अटेंड करते हैं, मैं खुद भी बड़े बड़े सियासी मेम्बरान के गवर्नमेंट लेवल पे प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं होते कि जाके हम वहाँ पर लंच कर लें, डिनर करें। हमें सीखने का और ओपन हॉल मिलता है, और ओपन वेलकम किया जाता है, आइए अपने अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और उनको हम हल करते हैं। हमें बोलना ही नहीं आता, हम जाते नहीं उनके पास। अगर जाते भी तो जेन में ये होता है, यार जो लंच मिलेगा, हाँ जी चले जी चलते हैं। हमारा आगे कोई फर्दर फ्यूचर प्लान नहीं होता। इसी तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी को तो गुजार लिया, आने वाली नस्ल को हमने क्या देना। क्या हमने इसी तरह से उनको भी इसी तरह से पिसते हुए देखना चाहिए, कि जिनके पास के फ्यूचर नहीं है। आज मैं दावे से कहता हूँ, हमारे जितने भी क्रिश्चियन, चाहे चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, इतने बच्चियां बच्चे पढ़े लिखे हैं, एमए किया, ग्रेजुएशन किया, आईटी पे प्रोग्राम में किया, डबल एमए किया हुआ, बेरोजगार है। क्यों? ये पॉलिसी नहीं है। अगर कोई बच्चा इतने स्ट्रगल करके, वालदेन अगर गरीब हैं, वो मेहनत मुशक्कत करके अपने बच्चों को यहाँ तक लेकर आते हैं, इनकी ग्रेजुएशन तक, उसके बाद फर्दर फ्यूचर क्या है? कुछ भी नहीं। अभी एग्जाम्पल कल की परसों की बात है, मैं एक ऑफिस वो गया था एक अदारे में, जहाँ पर हमारे स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं, यतीम खाना जिसको कहते हैं, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। वहां पर मैंने देखा एक लड़का जो के स्वीपर है, उसने आईटी किया हुआ है। और मैंने उसको पूछा कि ये जॉब क्यों कर रहे, तुम्हारी तो अभी इतनी एज भी नहीं है। कहता सर जी मैंने तो अप्लाई किया था यूडीसी के लिए, उन्होंने मुझे कहा ये पोस्ट है, अगर तुमने करनी तो कर लो। मैं मजबूरी में फिर मैंने ये काम एक्सेप्ट किया। मैं कहा यार, इससे बेहतर था कि आप कोई टेक्निकल जॉब कर लेते, ड्राइवरिंग का काम सीख लेते, नायब कासिर लग जाते। ये क्यों? कहने लगे जब मेरे घर की मजबूरी थी, पोस्ट खाली थी, तो मुझे फिर लाजमी इसमें करना पड़ गया। तो बात सारी कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। अभी देखें, हमें फिर भी एक बड़ी अच्छी एक अभी लास्ट मंथ
इसी महीने में, बल्कि हमारे रोजे भी थे और अभी भी है आज का रोजा। तो सरगोदा में देखें, चर्च के अंदर हमने अपने तमाम मुसलमान भाइयों को इफ्तार भी कराया, वहां पर उन्होंने अजान भी दी, नमाज भी पढ़ी। तो हमारे अंदर तो तफरकेबाजी है नहीं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। हम तो हर एक को बाजू खोल के कहते हैं जी वेलकम आए जी। लेकिन हमारे साथ क्यों इस तरह से ज्यादती होती है? एग्जाम्पल, आप जब से पाकिस्तान बनाई, बल्कि बल्कि 90s के बाद अब तक, किसी भी दही इलाके की आप हिस्ट्री उठा के देखें, डेली फेसबुकों पे क्रिमिनल किस्म के वाकयात आ रहे हैं। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, थाना कचहरियां भरी हुई हैं, माँ बाप रो रहे हैं, पीट रहे हैं, इंसाफ दो। अगर नहीं मिलता इंसाफ, और मैं फिर भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने तमाम देखने सुनने वालों को कि फेसबुक की जितनी भी स्टोरीज आती हैं, बजाय आप उनको आगे वायरल करते हैं, काइंडली फॉर गॉड से पहले आप तस्दीक करें। इस तरीके से हमारी जो मुल्क की साख्त है ना, पूरी दुनिया में जाती है, ये ऑन द रिकॉर्डिंग लाइव जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, ये कि हाँ जी यहाँ पे ये कुछ हो रहा है। हम तस्दीक नहीं करते, हम लाई लगे, जिसने बात की हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। हमें अपने आप में पहले सेटलमेंट करनी चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें क्यों इस तरह से मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है? क्या क्रिश्चियन के साथ ही हो रहा है? हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा, और अदर्स का रिलीजन्स के साथ नहीं हो रहा। मैं खुद बाहर नॉर्वे रह कर आया हूँ, वहां जाके मैंने देखा है कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी वाइफ हम लोग गए वहां पर नॉर्वे, तो वहां जाके मैं एक राशन की वो था, बहुत बड़ी शॉप थी, वहां ले रहे थे सामान, लेके जब बाहर निकले तो काउंटर पे जब पहुंचे तो उन्होंने कहा जी पेमेंट नहीं आपने देनी। हमने कहा क्यों? कह लेंगे जी वो आपकी पेमेंट हो गई है। वो कैसे? वो जी नॉर्वे ने पीछे फॉरनर खड़ा था, उसने कहा जी मैंने पेमेंट की है। मैंने कहा क्यों? कहते जी आप क्या जो हमने डील डॉल देखा पाकिस्तान से, किस कंट्री से आए? मैंने कहा जी पाकिस्तान से। कह लेंगे हम समझे कि आप लोग बहुत गरीब है इसलिए हम लोग ये हेल्प करते। तो फर्स्ट स्लैप हमारे मुंह पर यही थी कि हम किसी भी मुल्क में जाएं तो हमारी तो इज्जत ये है। इवन कि हम जब एयरपोर्ट जाते हैं तो हम एक साइड पे खड़ा कर देते हैं ग्रीन पासपोर्ट को। क्यों? क्या किया भाई हमने? ये हमारा मुल्क है, हमारा हक है, हमारी धरती। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम, हिंदू है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और इस मुल्क को हासिल करने के लिए एक दो दिन का नहीं था ये काम, कई साल लगे हैं। और आज हम बड़े फख्र से कहते हैं इस मुल्क में हम आज़ाद हैं, हमें किसी की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है तो ये वायरल न्यूज़ की टेंशन है जो कि मिलती है और मेंटली टॉर्चर करती हैं। मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा इसको फौरी तौर पे ब्लॉक करें, ऐसी न्यूज़ को जो कि आती हैं, जो कि इंतशार वो फैलाती हैं, आपस में दराड़े, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े के लिए सोचते हैं। हमें तो इन चीज़ों पर गौर ही नहीं करना चाहिए, इनको बल्कि ब्लॉक करवाएं। मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है स्पेशली कि आप इसको ना प्लीज किसी भी तरीके से ये वर्क करें। बाकी पेरेंटिंग मीटिंग्स के ऊपर तो मेरा हम लोग काम कर ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, स्कूलों के दाखिले की फीसें नहीं है, किताबें नहीं है, तो वो कहाँ से आएंगे? बाहर से मुल्कों ने नहीं भेजनी, हमने करनी है, ये मुल्क हमारा है, वो बच्चे हमारे। थैंक यू सो मच आरिफ साहब। आई थिंक देर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने मेंशन किए हैं, और मेरे ख्याल से उन सब चीज़ों के ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने एक चर्च की भी एग्जांपल दी कि वहाँ पे भी आपने मुस्लिम्स को इनवाइट किया, तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ द एग्जांपल्स वी नीडेड, कि जहाँ पे हम अपने डिफरेंट मजहबी प्लेसेस के ऊपर हम अपनी डिफरेंट फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ को बुलाएं, और ताकि हम एक दूसरे को समझें और बेटर अंडरस्टैंड करें कि हमारे अंदर इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि जब हमारे इस तरह के भी कोई भी हो, इतना हमारे पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए डाइवर्सिटी के लिए कि उस तरह का हमें माशरा, हमें पाकिस्तान चाहिए कि जहाँ पर तमाम मजहबी अकलियतें हैं। फिर हम अकलियत की बात कर रहे हैं, हालांकि ये लफ्ज हमें पसंद नहीं है। माइनॉरिटी की जितनी भी फेथ बेस्ड कम्युनिटीज हैं वो सब मिलकर अच्छी तरह से करें कि किसी किस्म का भी तफरका और ये जो एक्सट्रीमिज्म है, जो इंसिडेंट वायलेंस है, उनको हम कम करने की कोशिश करें। तारिक साहब, आपका वहां पे मिस हो गया। आपने बड़े अच्छे पॉइंट उस टाइम पे रेस किए। आपने जो कायदे आजम का, मैंने उसमें मेंशन भी किया कि उस टाइम की जो आप एग्जांपल्स दे रहे थे कि हम उसी तरह का पाकिस्तान चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारी माइनॉरिटी, हमारी जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज से लोग हैं वो आए उन स्ट्रांग पोजीशन पे। हमने देखा है रिलीजन में भी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी काफी डिस्क्रिमिनेशन है। एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वल सिटीजनशिप की राइट्स देते हैं, फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिस्क्रिमिनेट भी कर रहा होता है कि आप
प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की पोजीशन पे नहीं आ सकते, या आप और पोजीशंस के ऊपर, या हमारे माइनॉरिटीज के लिए फिर वो जो एलोकेशन है जनरल सीट्स के लिए, वो बड़ा उसके लिए डिस्पैरिटी है। आप 18th अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, वो पॉइंट भी हम आपसे सुनना चाहेंगे, और हम आपसे ये भी सुनना चाहेंगे कि किस तरह से मजीद हम उस कायद के पाकिस्तान को, या जो वो सोच थी उसको इनकलकेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं विलियम परवेज साहब, वो कुछ बात करना चाहते हैं। विलियम साहब बात कर लें, उसके बाद फिर हम फ्लोर ओपन करेंगे कि अगर हमारे पार्टिसिपेंट कोई आपसे सवाल करना चाहते हैं, और फिर विलियम साहब की बात के बाद अगर कोई सवाल है तो वो हम ले लेते हैं। और फिर मैं आप सब से जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, आमिर वसीम साहब हैं, अफीफा है, आप हैं, तारिक साहब, आप इसको कंक्लूड कीजिएगा डिस्कशन को कि हमें थोड़ा सा ये दीजिएगा कि हम वो कायद का पाकिस्तान या वो सेकुलर स्टेट के लिए अब हमें मजीद कोई एक दो स्टेप्स दैट वी नीड कि जो हमें करने चाहिए जिसके जी लिए। नताशा, अभी मैं बात करूं या विलियम साहब बात करें? मैं विलियम भाई विलियम बात साहब करेंगे? को पहले कहती हूँ कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो हमारे पार्टिसिपेंट हैं। जी विलियम साहब, हम आपसे सुनना चाहेंगे आप क्या इस पे करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पैनलिस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। जी विलियम साहब, आप हैं? अ, जी थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी। पहली तो बात ये है कि मैं ये चाहूंगा कि पहले हम तय करें कि इंटॉलरेंस है क्या, और कि हम पहले इंटॉलरेंस को डिफाइन करें कि क्या हमारी सोसाइटी में जिस तरह से हम समझते हैं, क्या उस तरह से इंटॉलरेंस प्रिवेल करता है, और अगर जिसको हम इंटॉलरेंस कह रहे हैं वो है क्या। मिसाल के तौर पर, क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि जो जितने भी लोग रह रहे हैं मुख्तलिफ मज़ाहब के या मसालिक के, कि हम उनको बिल्कुल ही बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं, या ये कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है कहीं पे और उसके सराउंडिंग में मुस्लिम कम्युनिटी है, तो क्या वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। इस तरह की सूरत हाल हमें कहीं नजर नहीं आती है, और उसकी वजह सबसे बड़ी, मैं आपके सामने हूँ, तारिक है, तारिक एक बड़ी अच्छी इसमें पॉलिटिकल पार्टी में एक अच्छी पोजीशन पे है, यानी अच्छे ओहदे पे हैं, और अच्छी जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसी तरह से मैं हूँ, मुझे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी प्ले राइट के तौर पे जाना जाता है, यहाँ रिकॉग्नाइज किया जाता है, मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है, और ये सारा काम जितना भी है, मेरा नाम है, ये तो उस सोसाइटी के अंदर है जिसमें 97% जो है वो मुस्लिम है। तो जो इनफैक्ट हम इंटॉलरेंस कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इंटॉलरेंस नहीं है। इस सोसाइटी में जितना टॉलरेंस है, मेरा ख्याल है कि वो उतनी, जितनी अच्छी सोसाइटीज हम कहते हैं जिनमें टॉलरेंस होना चाहिए, इसमें उतना ही टॉलरेंस है। लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि ये जो कुछ हो रहा है इंटॉलरेंस के नाम पर, वो है क्या। मामला ये है कि हमने, हमारी सोसाइटी ने कुछ जो परसेंटेज है लोगों की, उनको खुली छुट्टी दे रखी है, और वो रियासत भी उस पर खामोश है और हमारी सोसाइटी भी उस पर खामोश है। जो आप कहें कि तरक्की याफ्ता सोसाइटीज हैं या ममालिक हैं, वहां पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसकी बड़ी मिसाल जो है ब्लैक वो जो मैटर्स वाला था, इशू था, और वो जो था आई कांट ब्रीथ वाला, उस पे क्या हुआ था, उस पे सारे लोग बाहर आ गए थे। ये नहीं हुआ था कि सिर्फ ब्लैक पीपल बाहर आए थे, वाइट पीपल ज्यादा तादाद में बाहर आए थे। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि जब मिनॉरिटी का कोई मसला होता है तो मेजॉरिटी वाले उसकी मजम्मत तो जरूर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई बाहर नहीं आता। यहाँ पर ये बड़ा इशू है। इनफैक्ट ये इशू है जिसको हम इंटॉलरेंस का नाम दे रहे हैं। इंटॉलरेंस का कोई ऐसा इशू नहीं है। मामला ये है कि जो एक सोसाइटी है उसने इस रवैये को टॉलरेट कर लिया है, और ये समझ लिया है कि बस ठीक है, जब मिनॉरिटी के साथ होगा तो हम मजम्मत कर देंगे। हालांकि जो मेजॉरिटी है इस मुल्क की सोसाइटी की, वो कत्तन ये नहीं चाहती है जो कुछ होता है, लेकिन जो छोटी सी मिनॉरिटी है उसको ये अलाउ कर दिया है, क्योंकि उनके पास डंडे हैं, उनके पास स्टेट पावर है, उनके पीछे रियासत है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये जितने भी मुल्ला हैं ये सारे पाले हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और उनके पीछे यही है। और जब वो बाहर आते हैं तो कोई मसला नहीं होता।
वो जो चाहे वो फैजाबाद बंद कर दें, 10 दिन बंद रखें, कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो ना उसको बाहर निकलने दिया जाएगा, ना उसके साथ कोई किसी किस्म का जो है ऐसी राय बरती जाएगी जो उनके साथ बरती जा रही है। तो मेरा जो मानना है, मैं अपनी बहुत सारे जो ऐसे प्लेटफॉर्म है उन पे बात भी करता हूं, और मैं इस पे फर्म बिलीव रखता हूं कि जब तक मिनारिटी मेजॉरिटी को शामिल नहीं करेगी अपने इस इश्यू में, और मेजॉरिटी मिनारिटी के साथ शामिल नहीं होगी इस इश्यू में, तब तक ये इश्यू इंटॉलरेंस के नाम पे ऐसे ही वो इसकी दुकानदारी चलती रहेगी। कुछ ना ये पहले कभी इंटॉलरेंस था, ना अब है, और ना ही होगा। ये मामला है, एक समझ लें कि पावर का एक एक ऐसा तबका है जिसको मजहब के नाम पे एम्पावर्ड किया गया हुआ है। अब वो अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते, और जिनने ये पावर दी है उनके लिए ये बहुत स्ट्रेटेजिक किस्म की पावर है कि वो इसको बारहा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस मुद्दे को जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से उठाने की बहुत जरूरत है, ताकि जो सही मसला है, जहां पर सही ये आप समझ लें कि जो बुनियादी मसला है, जहां पर बुनियाद है इस इशू की, उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे। आज अगर आप ये देखें कि तारीख है कि जो भी बस्तियां जली हैं वो वहां से जली हैं जहां से मसाजिद से ऐलानात हुए हैं। जहां मस्जिद से ऐलान नहीं हुआ है वहां पर जो कम्युनिटी के अंदर ही है उस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। आप मैक्सिमम यही देखेंगे। हो सकता है कोई एक आध ऐसा हो कि मस्जिद में ऐलान के बगैर भी ऐसा होगा, लेकिन ज्यादातर यही है। और जैसे ही वो मामला किसी मजहबी रहनुमा के हाथ में आया है, फिर वो सुधरा नहीं है, बल्कि वो फिर ज्यादा से ज्यादा ही बिगड़ा है। और आज तक जिन में जिसने भी को मस्जिद से ऐलान किया है, या जिस मजहबी रहनुमा ने उसको फैलाया है, वो रमशा केस हो, वो गुजरा का केस हो, वो चाहे यहाँ जो लाहौर में हुआ है उसका केस हो, कोई मजहबी रहनुमा या जिसने भी इसको कैटलिस्ट के तौर पे आ गया है, उसको कोई सजा नहीं हुई। इसलिए उन्हें पता है कि हम जो भी करेंगे हमें हमें प्रोटेक्शन हासिल है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो बुनियादी काम है वो यही करने का है, मिनारिटी को मेजॉरिटी के साथ मिल के प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, मिल के इस इशू पे काम करने की जरूरत है, और मेजॉरिटी को मिनारिटी के साथ। आप ये देखें, जो सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस है उसकी नई रिपोर्ट आई है, ये तारिक ने शेयर किया मुझसे। उसमें ये लिखा है कि 70% जो केसेस हैं वो मेजॉरिटी के खिलाफ हैं, ब्लास्फेमी के। उसमें मुसलमानों पर इल्जाम लगे हैं। तो अब हम क्या कहें कि जी मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ इंटॉलरेंस है उसमें? ये इंटॉलरेंस नहीं है, ये एक खालिस्तान पॉलिटिकल इशू बन चुका है जिसके पीछे पॉलिटिक्स है, और जिसने भी अपना को पर्सनल मैटर सेटल करना है उसके लिए ये बेहतरीन वेपन है। तो मुझे तो लगता है कि जब तक हम मेजॉरिटी वाले अकेले से ऐसे इसी तरह से प्रीस्ट को आगे लगा के और सलीबे पकड़ के इस पे एहतजाज करते रहेंगे, उसका वो नताइज नहीं निकलेंगे जब तक हम मेजॉरिटी को इसको साथ शामिल करें, मेजॉरिटी हमारे साथ शामिल हो। तो फिर ये इशू हाईलाइट भी होगा, और वो लोग एक्सपोज भी होंगे, और वो लोग फिर अकाउंटेबल भी होंगे जो इस सारे इशू को उठाते हैं और इससे फायदा उठाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया विलियम साहब। आई थिंक जो इंटॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैं बिल्कुल एंड पे थोड़ा सा आपको वो कहूंगी, लेकिन जो आपने एक जो कलेक्टिव एफर्ट्स की बात की, आई थिंक दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो कलेक्टिव एफर्ट्स कैसे आएंगी, मतलब वही चीज हम सुबह से डिस्कस करने, मतलब आज के इस वेबिनार में डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी सोसाइटी को उस सारी चीज के ऊपर लेकर आएंगे। क्योंकि हम यही देख रहे थे कि बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि स्टेट का रेट नहीं है, गवर्नमेंट क्यों
लेवल की विलिंगनेस नहीं है, या पॉलिसीज का मतलब आइन के अंदर भी फुकदान है, फिर जो लेजिस्लेशन जो मौजूद है वो भी उस तरह से सपोर्टिव नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो, क्योंकि सोसाइटी भी तब कटी होगी कि जब हमारे सारे पैरामीटर्स बिल्कुल साथ अलाइन होंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर है, फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर जो चीजें आ रही हैं, फिर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, फिर उसको फिर बाकी जो हमारे जितने भी सोसाइटल लेवल के ऊपर जो चीजें हैं, वो जब तक हम ये सारी चीजों को बिल्कुल एक साथ क्लब करने की सिर्फ बात तो हम नहीं करने पड़ेगी, लेकिन हमें इसके लिए एक्शन भी लेना होगा। तो अगर किसी का सवाल है तो प्लीज रेज हैंड करें, अदरवाइज हमारे पास टाइम बहुत कम है, 12:30 पे हमने इसको वाइंड अप करना है। तो मेरे जो तीन पैनलिस्ट अभी मेरे चार पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, तारिक साहब हैं, आमिर साहब हैं, फीफा हैं, आरिफ। जब हम इनसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं, तो तारिक साहब आप बात कर रहे थे, अगर मुझे मैं सिर्फ कुछ इसमें मैम आपके ना बात इस कर लूं? जो आपने उठाया है, इस पर सिर्फ दो दो लाइनें तारिक साहब, अगर जी जी आप अलाउ करें मुझे तो, जी जी कि ये प्रेशर जो होता है ना, जो भी लेजिस्लेशन होती है और जो भी पॉलिसी लेवल पे चेंजेस आती हैं, ये प्रेशर हमेशा नीचे से आता है। जब मैं यही कह रहा हूं कि जब मिनारिटी और मेजॉरिटी, और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये राब्तों की बात है। जब हम राब्ते करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हर जो मजहबी रहनुमा है, हर जो मौलवी है वो कोई इंटॉलरेंट ही है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस मसले को समझते हैं कि ये बहुत संजीदा इशू है, उनको पहचानने की जरूरत है और उनको साथ मिलाने की जरूरत है। हमारे एनजीओ सेक्टर में भी जो क्रिश्चियन लेवल पे है उसने भी इस पे कोई काम नहीं किया, और जो ओवरऑल भी एनजीओ सेक्टर है उसने इस पे काम नहीं किया कि ये इसको एक इंसानी हकूक का इशू लेके इसको एड्रेस किया जाए, रादर दैन कि हम इसको मिनारिटी का इशू बना के पेश करें। बिल्कुल ठीक है। और विलियम साहब, ये आपका पॉइंट अच्छा, मैंने थैंक नोट यू। भी मैं कर लिया। आपकी जरा मेरा नेट का इशू हो जाएगा अगर मैं आपको इजाजत दे दें। अच्छा, एक दो चीजें तो मैं और भी बात करना चाह रहा था। पहले तो पॉलिसी स्टेटमेंट की बात जो है ना वो बड़ी अहम है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और वजीर कानून थे जोगिंदर नाथ मंडल, उन्होंने हमारा आइन बनाना था। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हम कैसा पाकिस्तान, कायद कैसा पाकिस्तान देखना चाह रहे थे। सॉरी, मेरे नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ये बर्दाश्त वाली जो विलियम भाई सीनियर है, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त ना गलत आम इस्तेलाह है। बर्दाश्त क्या है? मतलब हवा और पानी सबके लिए हैं, तो मुझे बर्दाश्त मतलब को क्यों करे? मतलब बर्दाश्त तो देखिए ना एक नेगेटिव वे में जाता है ना। मतलब मैं हूं तो मैं हूं, यू नो। तो आप बर्दाश्त, मुझे नताशा क्यों बर्दाश्त करें? क्योंकि आमिर भाई वहाँ मुसलमान है तो मुझे ये बर्दाश्त करेंगे? मतलब बर्दाश्त करना तो एक होता है ना कि मैं, आप बुरे भी हैं तो मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मतलब ये कि ये गलत, ये टर्म ठीक नहीं है। फिर एक और टर्म है, आपने बात की, मैं समझता हूँ ये जो टर्म है ना यूज करते हैं हम, गैर मुस्लिम की, नॉन मुस्लिम की, ये सरीहन गलत है। आपने कभी नहीं सुना होगा इंडिया में जो रहते हैं मुसलमान और हमसे ज्यादा मुसलमान हैं वहां पे, वो उनको कहीं नहीं कहता हिंदू, गैर हिंदू मुसलमान। जो क्रिश्चियन, जो मुसलमान अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले, उनको कोई नहीं कहता आप गैर हिंदू, गैर क्रिश्चियन मुसलमान है। तो ये गलतुल आम है, ठीक है। ऐसी चीजें अदराइजेशन की तरफ जाती हैं। आप थीसिस से पहले एंटी थीसिस नहीं दे सकते, या बारीक बारीक बातें हैं लेकिन बड़ी दूर लेके चली जाती है हमें, ठीक है। तो ये हमें ये इस पे करना चाहिए। हम पाकिस्तानी क्रिश्चियन, पाकिस्तानी मुस्लिम, हिंदू, सिख जो भी हो, इससे हम गलत उलूम नहीं कह सकते, ठीक है। और एक मैं जरा जल्दी बात करूं कि आपने कहा कि वो करना है। आप लोग हमारे यहाँ पे ये भी बड़े दानिशवर होते हैं, वो कहते हैं कि साहब ठीक है, वो देखे ना इंडिया में ये हो रहा है। भाई इंडिया में ये हो रहा है तो इंडिया में तो सदर पाकिस्तान मुसलमान बन जाता है। उनका सबसे बड़ा एक्टर शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है। आप विलियम भाई बात कर रहे थे, ठीक है, वो राइटर हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा बताएं यहाँ पे, ऐसे ऐसे लोग हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कोई किसी फील्ड में मुझे बताएं कि जो आपका वो सिर्फ इस बेस पे ना आगे आया हो। मैं पर्सनल बात कर सकता हूँ लेकिन मैं करूंगा नहीं। तो बहुत लेकिन कहने सारे का हैं मतलब है कि ऐसे, ये जो तारिक चीजें हैं ना, ऐसा नहीं है। उसमें नहीं ए मैं जानता नैयर है, हूँ, रॉबिन लेकिन गोशेस, मैं, शबनम है, ये ऐसी नहीं है बात। नहीं वो मैं तो, वो दहाइयों दहाइयों पहले की बात है, लेकिन मैं विलियम नहीं भाई नहीं आपसे वो है नहीं तो कर सही ना, रहा, हम लेकिन मैं उसको जो बात इग्नोर कर तो रहा हूँ नहीं आप कर उसको, सकते। हाँ हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हाँ, नहीं नहीं है। वो तो फिर पहला आपका मैं तो कह रहा हूँ कि आपका पहला जो सीएनसी था वो भी क्रिश्चियन था, दूसरा भी क्रिश्चियन था। मैं तो कह रहा हूँ वो था, अब नहीं है। पाकिस्तान का पहला वजीर जो पंजाब असेंबली का स्पीकर था वो भी था, क्रिश्चियन था, अब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पहला जोगिंदर नाथ मंडल वजीर तालीम था, वजीर कानून था, अब नहीं है। आपका अहमदी वजीर खारजा था, सरदफरुल्ला, अब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना, अब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें सुकड़ रही हैं। विलियम भाई आपको उस तरफ देखना है ना, हमें आज की बात करनी है।
तो पास में तो था, तो हम आप ये पास चाह की रहे हैं बात कि करें वैसा ना, हो। आप ये ना कहें यार आप कि कोई अभिनव भाई, नाम आप बताएं। देखिए ना, बिल्कुल मैं ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लेट हिम कंप्लीट, आप मुझे लेट हिम बात कंप्लीट। उसके, हाँ हाँ हाँ, उसके इनको उसके कंप्लीट बाद आप करने बात कर दें। लीजिएगा। और हम भी तो ये कह रहे हैं कि आज दूसरी हमने बात है कि ये हाँ, और मिस यूज ऑफ जो ब्लेस्मी लॉ है, इसका हम नहीं कह रहे कि इसको वो करें, रिपील करें, लेकिन जो मिस यूज है उसका मिस यूज नहीं हो, मतलब जो उसका है उसकी रोकथाम होनी चाहिए, उसके लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर मैं उठता हूँ तो किसी पे इल्जाम लगाता हूँ, ऐसे सरगोदा से दोस्त हैं, लेकिन मैंने सरगोदा में बड़ा काम किया है। मैंने जब नई चीजें रुक रही थी तो फिर एचआरसीपी के साथ मिलके हमने, हारिस साहब, हारिस वाज वेरी काइंड टू मी, इज लाइक एल्डर ब्रदर। तो सादिया बुखारी, मैं और आसिफ खान साहब हैं वहाँ पे, लाहौर से कुछ टीम आई थी, तो हमने उसकी फैक्ट फाइंडिंग की, तो जिसके बाद वहाँ पे चीजें रुकी। मिसाल के तौर पे आप कोई भी एक सरीहन जो बाइबल की आयत है उस पर भी ब्लेस्मी लगा दी, और पुलिस से हमने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए, तो कहा कि आपने इस पे तो ब्लेस्मी बनती नहीं है, कोट अन कोट बाइबल की वर्ड्स थी। तो मैंने कभी ये तो पाकिस्तान में रहते हुए कोई अपना कर सकते हैं आप, इस पे कैसे बनती है? तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, मतलब हमें ये जवाब दिया कि कमिश्नर साहब ने, कि हमने मॉब को ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए किया था। आप सोचे कि मैंने कहा यार, वो पहले कहते थे ना किसी दरख्त पे 302 लिखते हैं तो वो दरख्त सूख जाता है, अभी आप ब्लेस्मी लॉ लिखते हैं तो पूरी फैमिली का सत्यानाश हो जाता है। कम से कम 15 से 20 साल तक वो, तो मैंने कहा आपने उसका पूरा खानदान भी कर दिया, तो आपने मौत को ठंडा कर दिया। तो कहने का मतलब है चीजें तो बहुत हैं, लेकिन आगे जाने वाली बात जो है वो यही है कि अपना चीजें सुकड़ रही हैं, हमें जो कम हो रही हैं, पहले जो होप ज्यादा थी अब वो होप कम हो रही है, ऐसी पार्टीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। और एक चीज मैं और कहूँ, ये जो अभी बात कर रहे थे ना, आमिर भाई ने शायद की, आपने की, कि ये जो वो किसी से इजाजत नहीं लेते। हम सलमान तासीर साहब की एसोसिएशन, जहाँ पे उनकी जहाँ पे उनको मर्डर किया गया था, तो हम हर साल वहां जमा होते हैं, गैदर्ड होते हैं। फरतुल्ला बाबर साहब थे, फरजाना बारी थी, मेरे ख्याल में विलियम परवेज साहब भी थे हमारे साथ, और भी कुछ हमारे दोस्त थे, डॉक्टर बशीर था, और भी तो लोग थे कुछ जो हमारे होते हैं, फातिमा थी, और तो लेकिन टीएलपी के लोग चाह रहे थे कि वो हमारे गिरेबान पकड़ ले, लड़ाई करना चाह रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे, और वही वही स्लोगन लगा रहे थे, सरतन से जुदा, और ये और ये और ये वो। हम पीसफुली वो कर रहे थे। हमने हाँ। सिर्फ एक बात कर लूं कि पुलिस वाले हमें रोक रहे थे, उनको नहीं रोक रहे थे। पुलिस वाले बाबर साहब को कह रहे थे, डॉक्टर फरदाना को कह रहे थे कि इनको आप कहें कि आपने, उनको नहीं कह रहे थे। तो आप ये बहुत बड़े भोंडे मजाक हैं इसके, हमारे उसमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच लेकिन तारिक बहुत साहब। अच्छा, और अप्रिशिएट यू। या थैंक यू सो मच, एंड देयर सो मेनी गुड पॉइंट्स फॉर अस। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट्स रह गए हैं। अगर अफीफा और आमिर सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो, वरना हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं डिस्कशन को। और जी जी जरताशा, मैं जस्ट जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है मैंने सुनी है, और इसमें बहुत सी चीजें क्लियर भी हुई हैं। मैंने जो कुछ पॉइंट्स रेज किए थे, तारिक गौरी ने उसका बड़ा अच्छा आंसर भी दिया। मैंने जो फियर की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा डायलॉग है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वी वांट टू रिमूव दिस फियर। तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। और जो मैंने शुरू में बात की थी कि जो स्टेट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा पार्लियामेंटेरियंस और हमारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो सबसे ज्यादा है। इंडिविजुअल तो है ही है, बट उनका ज्यादा है। तो वी नीड टू एंगेज मोर एंड मोर विद द पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट। सेकेंडली, ये जो तारिक साहब ने बात की टॉलरेंस के हवाले से, बिल्कुल ठीक बात की कि, और ये अभी ताहिर अब्दुल्ला साहिबा ने भी पिछले दिनों एक सेमिनार में की थी कि टॉलरेट तो उस चीज को किया जाता है जिसको आप पसंद नहीं करते तो आप बर्दाश्त करें। सो ये लफ्ज जो है फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज, परहैप्स इट्स नॉट fair to use this term, but when we talk about democracy, then there must be tolerance for each other, कि हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को टॉलरेट करें। ये हम व्यू पॉइंट के हवाले से बात करते हैं। सो देयरफॉर आई थिंक कि ये जो डिबेट हम कर रहे हैं, इसको एक तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, इस तरह की डिबेट्स जो हैं वो ऑन रेगुलर बेसिस होनी चाहिए, और वी शुड एंगेज द मीडिया, द नेशनल मीडिया, एंड इफ दिस सच काइंड ऑफ डिबेट्स ऑन नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बट अगर यही डिबेट हमारी इस पर जियो पे लाइव जा रही हो, समा पे लाइव जा रही हो, और चैनल्स पे लाइव जा रही हो, तो आई थिंक उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। सोशल मीडिया का है जरूर, बट नेशनल मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है, वी कैन नॉट रूल इट आउट। सो उसको हमें इंगेज करना है। और साथ ही साथ जो हमारी जो जुडिशियल रिफॉर्म्स, जो हम जितनी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, इस सब का जो इख्तिताम होता है वो अदालत पे जाके होता है। जब ब्लास्फेमी लॉज बनते हैं या किसी को विक्टिमाइज किया जाता है या हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, सो ऑलवेज वी लुक टुवर्ड्स कोर्ट्स टू सीक जस्टिस, और वहां पे हमें बहुत कमजोरियां नजर आती हैं। और ये जो जजेस हैं, इनको जो प्रोटेक्शन
देने के हवाले से जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऐसा एक माहौल है कि जो तारिक साहब बात कर रहे थे कि हम एक सेकुलरिज्म की बात करें, और हम खुलकर ये डिमांड अभी हम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान शुड बी अ सेकुलर स्टेट। हम अभी खुलकर ये बात नहीं कर सकते कि ब्लास्फेमी लॉज को खत्म कर दिया जाए। हम ये खुलकर बात नहीं कर सकते कि इस्लामिया शुड नॉट बी कंपल्सरी सब्जेक्ट इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बट एटलीस्ट हम इन पे रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, ग्रेजुअली हम करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऑल टुगेदर हम इस तरह की डिमांड्स करेंगे तो मेरे ख्याल है कि वो उसका पर रिएक्शन आएगा। सो हमें ग्रेजुअली इस चीज को जो है प्रोपेगेट करना चाहिए अमंग द स्टेक होल्डर्स, अमंग द पॉलिसी मेकर्स, कि इस तरफ हम जाएं और इन बातों को हम कॉन्स्टेंटली करते रहें। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज से कि हमें डिबेट्स करते रहना चाहिए, और इस फियर को उसी वक्त एग्जैक्टली। हमें खत्म होगा। हाँ और डेमोक्रेसी को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और लॉज हमारे मुल्क में बन जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो लिहाजा इस तरफ बिल्कुल हमें ठीक है। मैं यहाँ जाना पे चाहिए। आमिर साहब आपको कट करूंगी, बस 1 मिनट रह गया, हमारा ये वेबिनार एंड हो जाएगा क्योंकि टाइमिंग इसका हमने वही किया हुआ था। जी जी, मैं आई हैव कंक्लूडेड। ओके सो बहुत सारे रेलिवेंट पॉइंट आ गए हैं। हम आपने नेशनल मीडिया की बात की, हम इस वेबिनार का प्रेस रिलीज भी बनाएंगे, वो भी रिलीज करेंगे। सो वी नोटेड ऑल द पॉइंट्स एंड वी आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट इट, और इंशाल्लाह वी आर हैविंग द मोर वेबिनार्स, एंड नॉट ओनली द वेबिनार्स बट वी आर गोइंग टू हैव सम मोर सेशंस ऑन इट। कि जो विलियम साहब भी बात कर रहे थे कि ये जो है मतलब वी नीड टू कम अप एट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से हमें टॉप लेवल के ऊपर जाना होगा, तो वो पूरी अलायंस इंशाल्लाह हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। वी आर गोइंग टू build up. Luto, thank you so much. We are also, please do like our page, Action for Impact. We are going to release the press release in English, and you can also find that what kind of the discussion we do have. So thank you so much for joining us, everybody. Time हमारा बिल्कुल end हो गया है. I am thankful to all of my panelists for joining us. Inshallah, we are going to share this recording with you, and we are going to have more and more discussion, and we are going to engage you guys more and more in the more upcoming session as well. Thank you so much for all of you. And in that, we are going to end this webinar session. Thank you. मैं चाह रहा था अगर आपकी इजाजत हो, कह Thank सकता you हूँ so much. Thank you, ma'am. मैम। जी जल्दी से आरिफ सब ऐड कर दीजिए, एंड वी रियली वांट कि अगर सब कैमरास अपने ऑन कर लेते हैं सो वी कैन हैव वन ग्रुप फोटोज। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें अपनी बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पे पाबंद किया गया है कि तुम आला हुकूमतों के ताबे रहो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। Thank you जी। I'm just taking the picture. Thank you so much everyone, and